السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز۔ سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان جاری۔ حیدرآباد میں قیمتیں آسمان چھونے لگی۔ 22 کیرٹ 1,02,000 روپے جبکہ 24 کیرٹ 1,13,000 روپے درج۔ شہر اور اضلاع میں شدید بارش سے مشکلات۔ میدک میں دوبارہ سیلابی صورتحال۔ ورنگل میں سڑکیں جھیل میں تبدیل۔ عثمان ساگر و حمایت ساگر کے کھولے گئے دروازے۔ میلاد النبی جلوس کے موقع پر چار مینار اور تفریحی مقامات رہیں گے بند۔ محکمہ آثار قدیمہ کا فیصلہ۔ میلاد ڈونر سے کمشنر پولیس CV آنند کا خطاب۔ KTR کو باوقار گرین لیڈرشپ ایوارڈ 2025۔ BRS ورکنگ صدر کا بین الاقوامی اعزاز کے لیے انتخاب۔ نیو یارک میں 24 ستمبر کو ہوگی تقریب۔ یاقوت پورہ میں لڑکی مین ہول میں گرنے کا واقعہ، یہ ہائیڈرا کی غلطی تھی، ہم ذمہ دار۔ ہائیڈرا کمشنر AV رنگناتھ کا اعتراف۔ عوام میں سخت برہمی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شہر میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ قیمتیں ریکارڈ سطح تک پہنچ چکی ہیں۔ تجارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں سونے کی قیمتیں اتار چڑھاؤ کا شکار ہو رہی ہیں۔ آج جمعہ کے دن شہر حیدرآباد میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں ایک دن میں مزید 1,000 روپے کا اضافہ درج کیا گیا اور یہ فی 10 گرام 1,13,000 روپے تک پہنچ گئی، جو اب تک کی بلند ترین سطح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 22 کیرٹ سونے کی قیمت میں بھی 750 روپے کا مزید اضافہ ہوا ہے اور 22 کیرٹ سونے کی قیمت فی تولہ 1,02,000 روپے تک پہنچ گئی۔ کہا گیا ہے کہ یہ اب تک کی سب سے بلند سطح کی قیمتیں ہیں۔ چاندی بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہی اور 1 کلو چاندی کی قیمت 1,40,000 روپے فی کلو ریکارڈ کی گئی ہے۔ شادیوں کے سیزن میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر اضافی بوجھ کا سبب بن رہا ہے۔ کہا گیا ہے کہ تجارتی تبدیلیوں کے دوران سرمایہ کار سونے کی تجارت کو محفوظ سمجھتے ہوئے اس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکی ٹیرف اور دنیا بھر میں جیو پولیٹیکل کشیدگی کی وجہ سے سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ جاری رہ سکتا ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں شدید بارش ہوئی۔ شہر کے کئی علاقوں میں موسلادھار بارش کے نتیجے میں سڑکیں جھیل میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ شہر کے مضافاتی علاقوں میں تقریباً 10 سینٹی میٹر بارش تک ریکارڈ ہوئی ہے۔ گزشتہ دنوں کی بارش میں تباہی کا شکار ہوئے ضلع میدک میں ایک بار پھر سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ 5 گھنٹوں کی بارش میں میدک ٹاؤن کے کئی علاقے جھیل میں تبدیل ہو گئے اور نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا۔ عوام کی نقل و حرکت مشکل ہو گئی اور عام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی۔ اس کے علاوہ ضلع ورنگل میں بھی شدید بارش ہوئی، جس کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ کئی مقامات پر سڑکوں سے گزرنا مشکل ہو گیا تھا اور کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے عوام کو مشکلات کا شکار ہونا پڑا۔ اس کے علاوہ آبگیر علاقوں میں بارش کی وجہ سے جڑواں ذخائر آب عثمان ساگر اور حمایت ساگر لبریز ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ عہدیداروں نے پانی کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے عثمان ساگر کے 2 اور حمایت ساگر کا 1 دروازہ کھولا گیا ہے اور موسی ندی میں پانی خارج کیا گیا۔ عہدیداروں نے نشیبی علاقوں میں رہنے والے عوام سے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ اتوار 14 ستمبر کو پرانے شہر میں تاریخی مکہ مسجد سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکالا جائے گا۔ محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے اس جلوس کے پیش نظر پرانے شہر میں تفریحی مقامات کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ اتوار 14 ستمبر کو پرانے شہر میں تفریحی مقامات بشمول چار مینار بند رہیں گے۔ حکام کی جانب سے گنیش وسرجن جلوس کے موقع پر بھی چار مینار کو بند رکھا گیا تھا
और अब मिलादुन्नबी के मौके पर भी चार मीनार को बंद रखने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में ऑनलाइन टिकट की फरोख्त भी बंद रहेगी। मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस तारीखी मक्का मस्जिद से इतवार को बाद नमाज ज़ोहर निकाला जाएगा, जो गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, सालार जंग म्यूजियम, दारुशफा और पुरानी हवेली, एतबार चौक, आलिजा कोटला से होता हुआ मोगलपुरा वाल्टा चौराहे पर इख्तिताम पजीर होगा। पुलिस की जानिब से इस जुलूस के लिए वसीतर इंतजाम किए जा रहे हैं और जुलूस में डीजे और बाइक स्टंट्स पर इम्तना आयद कर दिया गया है। कमिश्नर सिटी पुलिस मिस्टर सीवी आनंद आईपीएस ने कहा कि पुलिस की जानिब से इस साल मरकजी मिलाद जुलूस के सिलसिले में मौसर और बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे और गुज़िश्ता साल जो तकालीफ पेश आई थी इनका आदा नहीं किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस गुज़िश्ता शब मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से मुनक़दा मिलाद डोनर्स में खिताब कर रहे थे। उन्होंने 24 सितंबर इतवार को मरकजी मिलाद जुलूस निकालने के फैसले की सताइश की और हैदराबाद की आवाम खास तौर पर पुराने शहर के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान के साथ पुलिस ओहदेदारों की तफसीली बातचीत हुई। मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया है। लाइन ऑर्डर और ट्रैफिक के डीसीपीज को भी मौसर इंतजाम करने की हिदायत दी गई है और मंसूबा तैयार कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जुलूस की रूट पर पुलिस की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे ताकि किसी तरह की मुश्किलात पेश न आए। उन्होंने हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के अज़्म का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा आदाब। मिलादुन्नबी के सुनहरे मौके पर यहाँ पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ उलेमा, मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के मेंबरान, बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मशाइखीन, दोस्तों, सभी को मिलाद के इस मौके पर सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम सबको मालूम है कि मिलाद ऐसा मौका है जिसपे पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश के बारे में हमको याद दिलाती है। ये 15वां साल है, सालगिरह, और बहुत ही अहम ये मौका है। हम सब 100 साल, 500 साल, 1000 साल ऐसे गिनते हैं और ये 15वां साल है और बहुत ही अहम मौका है। तो सबको इस मौके पर मैं दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि उनकी तालीमात में जुल्म के बदले में इंसाफ, नफरत के बदले में मोहब्बत, झगड़े और तशद्दुद के बदले में अमन को सिखाया गया है। रहम और गरीब को मदद करने के बारे में कहा गया है। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। जहां में अमन का पैगाम बन के आए नबी, जहां में अमन का पैगाम बन के आए नबी, मोहब्बतों का चिराग बन के छा गए नबी। ये खत्म करता हूँ और आप सबको डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे सरकार की तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए खुदा हाफिज। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव का बाविखार ग्रीन लीडरशिप अवार्ड 2025 के लिए इंतखाब किया गया है। ये एक बैनुल-अक़वामी एजाज है जो 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में मुनाक़द होने वाली 9वीं न्यूयॉर्क ग्रीन स्कूल कॉन्फ्रेंस में पेश किया जाएगा। एक बाज़ाब्ता एलामिया में ऑर्गेनाइजर्स ग्रीन मेंटर्स ने इस अवार्ड की तौसीफ़ की और कहा कि वो शहरी इलाकों में देरपा हुक्मरानी और माहौलियाती इख्तिरा के लिए केटीआर की खिदमात का एतराफ़ करते हैं। केटीआर को मकतूब रवाना करते हुए कहा गया है कि इनका ग्रीन लीडरशिप अवार्ड 2025 के लिए इंतखाब किया गया है और ये इत्तला देते हुए ग्रीन
मेंटर्स ने मसरत का इजहार किया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना के बल्दी नज़्म नक्श व शहरी तरक्याती के वजीर की हैसियत से अपने दौर में KTR ने शहरी इलाकों में सब्ज़जार और शजरकारी को फरोग देने मौसर इक़दाम किए थे। शहर में GHMC के जरिए सैकड़ों पार्क्स कायम किए गए थे। हुकूमत तेलंगाना ने स्कूल्स में मसनूई जहानत को फरोग देने के इक़दाम का आगाज कर दिया है। मंथनी हल्के असम्बली के श्री रामपुर में एक मसनूई जहानत पर मुश्तमिल कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह अमल में आया। रियासती वजीर IT D श्रीधर बाबू ने इस लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा असतिज़ा और तलबा में LMS किताबें तकसीम की गईं और T-फाइबर के जरिए CCTV कैमरे भी मरबूत किए गए। D श्रीधर बाबू ने कहा कि देही इलाकों के सरकारी स्कूल्स के तलबा को खानगी इदारों की तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। मसनूई जहानत पर मुश्तमिल कंप्यूटर लैब के इफ्तिताह का मकसद हर तालिब इल्म को मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के मुताबिक तैयार करना और सहूलियात फराहम करना है ताकि वो मुसाबिक़त में किसी से पीछे ना रहें। और उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम स्कूल्स को डिजिटल बनाना चाहती है और इसके लिए मुसलसल इक़दाम किए जाएंगे। तलबा के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने हुकूमती तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने साबिक कांग्रेस सदर व अपोजिशन कायद राहुल गांधी पर साबिक BRS MLAs की पार्टी बदली का इल्जाम लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें मुतअद्दिद साबिक BRS MLAs कांग्रेस के इसकाफ के साथ खड़े हैं। KTR के ट्वीट के मुताबिक ये MLAs BRS टिकट पर मुंतखब होकर असेंबली पहुंचे थे, लेकिन बादअज़ा उन्होंने पार्टी बदली और कांग्रेस में शामिल हो गए। KTR ने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या वो इस कांग्रेस स्काफ को पहचान सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या ये MLAs जो दिल्ली में भी आपसे मुलाकात कर चुके हैं, पार्टी बदले बगैर क्या सच बोल रहे हैं। KTR ने सख्त अल्फाज में कहा कि ये MLA चोरी है, ये वोट चोरी से कम नहीं। कांग्रेस की ये साजिश अवाम के साथ धोखाधड़ी है। KTR ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या इन्हें अपनी इस साजिश पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। इनका मुतालिबा है कि कांग्रेस को ईमानदारी से अवाम के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि ये MLAs किस मंशा से पार्टी बदले हैं। खैरताबाद के रुकन असम्बली D नागेंद्र ने कहा कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस हाई कमान मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब करेगी और इस मौके पर न्यू MLA क्वार्टर्स में कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। उन्होंने जुबली हिल्स में कांग्रेस की कामयाबी की अहमियत पर जोर देते हुए बाद सोशल मीडिया चैनल्स पर फैलाई जाने वाली गुमराहकुन खबरों की तरदीद की और कहा कि कांग्रेस जैसे भी टिकट देगी इसकी कामयाबी यकीनी है। D नागेंद्र ने मजीद कहा कि मौजूदा सियासी हालात में जुबली हिल्स का इंतखाब खास अहमियत रखता है और अगर कांग्रेस इन्हें टिकट देती है तो वो जुबली हिल्स पर कांग्रेस का परचम लहराने के लिए तैयार हैं, जबकि वो रियासती काबिना में शमूलियत की कोशिश भी कर रहे हैं। నాకు అలాంటిది ఏం సమాచారం లేదు, మీ దగ్గర సమాచారం ఉంటే ఇవ్వండి, ఆ ఊహాగానాలకు సంబంధించి మళ్ళీ ఏదైనా ఉంటే చెప్తాను। అధిష్టానం నిర్ణయం మీద ఉంటుంది కాబట్టి దాని గురించి మనం మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు। అధిష్టానం ఎవరికి ఇచ్చినా కూడా అది గెలిపే ఖాయంగా పనిచేసేటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది ఒక మరి కార్యకర్తగా। అధిష్టానం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది సరైన సమయంలో, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితిలో మరి జూబ్లీ హిల్స్ గెలవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అధిష్టానం ఎవరికి టికెట్ ఇచ్చినా ఆ శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేసి अभ्यर्थी गेलिंचడానికి। तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से केबल कट दिए जाने के नतीजे में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट खिदमात बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं और इसके नतीजे में तलबा व ताजर बरादरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहा गया है कि केबल कटिंग के नतीजे में रियासती सेक्रेटेरिएट में भी इंटरनेट खिदमात मुतासिर हो रही हैं। केबल ऑपरेटर्स इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजियों का कहना था कि अचानक इस तरह के इक़दाम से जहां इंटरनेट खिदमात मुतासिर हो रही हैं, वहीं इनकी रोजी पर भी असर पड़ रहा है। इस एहतजाज के नतीजे में ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ा है। केबल ऑपरेटर्स ने कहा कि हुकूमत की जानिब से गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई की जा रही है और इसके नतीजे में रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर होगी। इंटरनेट खिदमात मुतासिर होने से तालीम, सेहत और डिजिटल तिजारत पर भी मनफी असरात
मुर्तब हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेक्रेटेरिएट में भी इंटरनेट खिदमत मुतासिर होने से सरकारी कामकाज भी ठप होकर रह गया था। रियासत में किसानों के लिए यूरिया की किल्लत का मसला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और यूरिया की किल्लत का शिकार किसान अब सड़कों पर उतरकर एहतजाज करने लगे हैं। वरंगल जिले के रायापट्टी में किसानों ने यूरिया की किल्लत के खिलाफ सड़कों पर उतरकर शदीद एहतजाज किया और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नारे लगाए। किसानों के साथ एहतजाज में साबिक रियासती वजीर ई दयाकर राव और BRS के दूसरे कायदीन भी शरीक थे। पुलिस ने ई दयाकर राव और दूसरे एहतजाजी किसानों को हिरासत में ले लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। पुलिस ने एहतजाजी किसानों को रोकने की कोशिश भी की, जिस पर किसानों और पुलिस में धक्कम-पील देखी गई। एहतजाज में सैकड़ों किसान शरीक थे। BRS के भी सैकड़ों कारकुनों ने एहतजाज में शिरकत करते हुए किसानों से इजहार यगानिकत किया और हुकूमत पर किसानों को यूरिया फराहम करने में पूरी तरह नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया। शमशाबाद में GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के आलमी एयरपोर्ट कस्टम्स तजुर्बा एक्रेडिटेशन प्रोग्राम में लेवल 4 एक्रेडिटेशन अवार्ड हासिल किया, जो मुसाफिरों को बेहतरीन खिदमत फराहम करने के लिए आलमी मियार की पहचान है। ये अवार्ड 4 सुतूनों पर मबनी है: कस्टमर सेंट्रिक कल्चर, जदीद मुसाफिरों की फीडबैक और डेटा पर मबनी सर्विसेज, हमवार सफरी तजुर्बात और इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सर्विसेज व मेहमान नवाजी में मुसलसल जिद्दत के लिए स्टेक होल्डर्स की शराकत दारी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रदीप ने कहा कि लेवल 4 एक्रेडिटेशन का हुसूल मुसाफिरों को मरकज में रखने के अज़्म का सबूत है, हमारी स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी की तस्दीक करता है और हैदराबाद एयरपोर्ट की आलमी गेटवे के तौर पर पोजीशन को वाज़े करता है। उन्होंने मजीद कहा कि एयरपोर्ट मुसलसल सर्विस के मियार को बुलंद करते हुए हमवार, मौसर और महफूज ट्रांजिट यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है और आलमी मियार का तजुर्बा फराहम करने का मकसद रखता है। हैड्रा ने याकुतपुरा हल्के में खुले मेन होल में लड़की के गिरने की जिम्मेदारी कबूल की है और कहा कि यह हैड्रा की गलती की वजह से हुआ है। वाज़ेह है कि कल मौला का चिल्ला इलाके में एक 6 साला स्कूली तालिबा खुले मेन होल में गिर पड़ी थी। हाइड्रा ने इस वाक़े की जांच के बाद अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है। कमिश्नर हाइड्रा मिस्टर AB रंगनाथ ने कहा कि हाइड्रा की जानिब से इब्तिदाई तहकीकात की गई और ये एतराफ़ किया कि इसमें हाइड्रा की गलती है क्योंकि मेन होल का ढक्कन बंद नहीं किया गया था। कमिश्नर हाइड्रा ने कहा कि इस वाक़े पर टीम इंचार्ज को जिम्मेदार करार दिया जाएगा। इसके जिम्मेदार शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लड़की के मेन होल में गिर जाने का वाक़या CCTV कैमरे में कैद हो गया था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। अवाम ने सरकारी अमले की लापरवाही पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया था। MIM याकुतपुरा के रुकने असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने शेख फैज की कमान में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के मंसूबे से मुतासिर जायदाद मालिकान को 30 मुआवजे चेक तकसीम किए। ये तकरीब आफरीन पैलेस फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुई, जहां कुल 13,16,82,091 रुपए की रकम तकसीम की गई। ये तवील इल्तिवा में रहने वाला तरक्याती काम अब आगे बढ़ रहा है, जिससे याकुतपुरा के अवाम को आसानी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और उम्मीद फराहम होगी। बाकी चेक जल्द ही तकसीम किए जाएंगे और सड़क के काम को भी जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर मजलिसी MLC मिर्जा रहमत बेग, डबिलपुरा के कॉरपोरेटर अलमदार वलजाही, MIM प्राइमरी यूनिट के अराकीन और दीगर मुकामी रहनुमा भी मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी शेख फैज की कमान में एक ज़माने से रोड वाइंडिंग का जो काम
पेंडिंग था। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और उनकी निगरानी के अंदर जनाब मिर्ज़ा रहमत वेद साहब ने इस काम की पैरवी की और अल्लाह के फजल व करम से आज 30 चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए यहाँ पे, जिसकी प्रॉपर्टी इफ़ेक्ट हो रही थी उनके लिए 30 चेक दिए गए हैं। आफरीन पैलेस में प्रोग्राम रखा गया था टाउन प्लानिंग के डिपार्टमेंट की जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ के मुकामी कारपोरेटर अलमदाल वालेजाई साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर सारे के सारे आज के प्रोग्राम में मौजूद थे। 30 चेक की लागत हो रही है 13,16,82,51 रुपये 91 रुपये 13,16,82,091 रुपीज़ आज के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। इंशाल्लाह माँ बाकी भी जो चेक्स है वो भी जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और रोड वाइंडिंग का काम जितना हो सके जल्द से जल्द मुकम्मल करा के यहाँ की आवाम को जो दुश्वारी हो रही थी उसको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। मैं तमाम आवाम का और इस बस्ती के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने वॉलंटरली आगे बढ़ के आके एक अच्छे काज के लिए जो रोड वाइड हो रही थी एक ज़माने से यहाँ पर जो लोगों को तकलीफ़ हो रही थी उसके लिए आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस प्रोग्राम में जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मलकाजगिरी डॉक्यूमेंट्स राइटर वेलफेयर एसोसिएशन ने रियासती हुकूमत के बापल में नए यकजाशुदा इमारतों के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें मलकाजगिरी रजिस्ट्रेशन ऑफिस को भी मुंतकिल करने का मंसूबा शामिल था। एसोसिएशन के अरकान 40 डॉक्यूमेंट राइटर्स और वकला के साथ तकरीबन 200 अहलखाना ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मौजूदा ऑफिस को इसी मुकाम पर बरकरार रखा जाए और इसे यकजाशुदा इमारत में शामिल ना किया जाए। उन्होंने वाजपेयी नगर मलकाजगिरी में जारी हुकूमत की ज़मीन के हवाले से हुकूमती जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए एक तहरीरी दरख्वास्त पेश की। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर, नायब सदर, खवातीन सदर को अधिकार और मुतअद्दिद वकला ने शिरकत की और अवामी मौकूफ को वाज़े तौर पर पेश किया। సమీకృత సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం బోర్డు ఉప్పల్లో కాప్రా, కేసర్, నారాపల్లి, ఉప్పల్ చివరగా మన మల్కాజ్గిరి రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాన్ని కూడా బోర్డు ఉప్పల్కు తరలించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సన్నాహాలు ప్రారంభించాయని స్వయంగా తొలి విడత భూమి పూజలోనే రెవెన్యూ మినిస్టర్తో పాటు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు తెలియజేసిన ప్రకారం నేడు మల్కాజ్గిరి డాక్యుమెంట్ రైటర్ల గుండెల్లో గుబులు ఏర్పడ్డాయి. అది ఏ విధంగా అనగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న 144 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో మొట్టమొదటి సొంత భవనం ఏది అనగా మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గమైన అతిపెద్ద నియోజకవర్గమైన మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గంలో మల్కాజ్గిరి మండలంలో ప్రభుత్వ స్థలమైన సర్వే నంబర్ 278లో 1200 గజాల సొంత భవనంలో మల్కాజ్గిరి రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాన్ని గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం శ్రీ మొహమ్మద్ అలీ గారి చేతుల మీదుగా ఇనాగ్రేషన్ చేయటమే కాకుండా 2017వ సంవత్సరం నుంచి నేటికి 8 సంవత్సరాలు 7 సంవత్సరాలు పూర్తయి 8వ సంవత్సరంలో అడుగిడిగిన నేపథ్యంలో ఈ సొంత భవనంలో ఉన్న మల్కాజ్గిరి రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాన్ని బోర్డు ఉప్పల్కు తరలించడం వలన పక్క ప్రాంతమైన కౌపూర్, యాప్రాల్, మల్కాజ్గిరి చుట్టూ పరిసర आदिलाबाद में साबिक नायब सदर मजलिस बल्दिया जहीर रमजानी ने म्युनिसिपल कमिश्नर के हमरा बीफ मार्केट का दौरा करते हुए इसकी खस्ताहाली पर शदीद बरहमी का इजहार किया और फौरी बेहतरी के इक़दाम का मुतालबा किया, जिनमें सफाई, बाउंड्री वॉल की तामीर, दिगर बुनियादी सहूलतें और बारिश के पानी के दाखिले को रोकने के इंतजाम शामिल हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर ने ऑन कैमरा यकीन दहानी कराई कि बीफ मार्केट की तरक्की के लिए जल्द इक़दाम किए जाएंगे और इजाफी 25 लाख रुपए की रकम मंजूर की जाएगी, जबकि पुलिस रिजर्व इलाके के उर्दू स्कूल में
पानी के दाखिले के लिए भी फौरी इक़दाम किए जाएंगे। ज़हीर रमज़ानी ने अवामी मसाइल की नुमाइंदगी जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया और अवामी हलकों ने इनकी काविशों को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि बीफ मार्केट और अक़लियती इलाक़ों के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। जिले एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा कि जिले को मंशियात से पाक बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं और हर फर्द का ताउन ज़रूरी है। उन्होंने खबरदार किया कि गांजा उगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदिलाबाद CCS और इचोड़ा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गोडी हथनूर मंडल के तोशम गाँव में गांजे की काश्त करने वाले 3 अफराद के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 2 मफरूर हैं। पुलिस के मुताबिक जब्तशुदा गांजा पौधों की मार्केट वैल्यू तकरीबन 62,70,000 रुपये है। SP ने कहा कि मफरूर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। गांजा उगाने वालों को सरकारी स्कीमों से महरूम रखा जाएगा। अवाम से अपील की गई है कि गांजा या दीगर मंशियात के बारे में इत्तला दें। SP ने बताया कि रवां साल अब तक जिले में 120 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 40 किलोग्राम खुश्क गांजा और 600 से ज़ायद पौधे जब्त करके 240 मुलजिमीन गिरफ्तार किए गए हैं। ఈ గాంజా పండించుకొని వాళ్ళు వ్యక్తుల పైన మనం కలెక్టర్కి రిపోర్ట్ పెట్టిన వల్ల వాళ్ళకి లాస్ట్ ఇయర్ రైతు భరోసా కూడా రాలేదు. మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం కూడా దాదాపు 25 నుంచి 30 మన ఇట్లా డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసాము, రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసాము, అది కూడా పంపిస్తాము. సో ఈ కేసులో కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళకి గవర్నమెంట్కి రాస్తాము కలెక్టర్ నుంచి దట్ ఇట్లా గాంజా పండిస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ ల్యాండ్లో. సో ఏమైనా గవర్నమెంట్ యూటిలిటీస్ వాళ్ళకి వస్తున్నాయి, దానికి వాళ్ళకి గవర్నమెంట్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తాం సో దట్ నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు కూడా ఆగిపోతారు. ఆ జనాలకి కూడా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే ఇది తోషంలో కూడా 2 కిలోమీటర్ల లోపల ఆ నడిచిన పరిస్థితి కూడా లేదు, మొత్తం బుద్ధ ఉంటుంది. అక్కడ వాళ్ళు అది పండిస్తున్నారు. మొన్న నార్నూరులో కూడా అట్లా కేసు అయితే 50 ప్లాంట్స్ దొరికినాయి. నిన్న కూడా నార్నూరులో ఆల్మోస్ట్ 20 ప్లాంట్స్ దొరికినాయి. అది వాళ్ళకు కూడా లోపల పెడుతున్నారు. అందరు జనాలకి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, మనం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సీక్రెట్ పెడతాము. ప్లస్ మనం SP ఆఫీస్ నుంచి లేకపోతే కన్సర్న్ పోలీస్ నుంచి కూడా మీకు సెపరేట్గా కూడా రివార్డ్ సిస్టమ్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాము. ప్లస్ మీకు మీ ఇన్ఫర్మేషన్ సీక్రెట్ ఉంటుంది, అది మనం చూసుకుంటాము, మీ పేరు బయట రాకుండా చూస్తాము. मरकजी मिलाद कमेटी ज़हीराबाद ने यह फैसला लिया था कि इस साल हस्बे रवायत खदीम शहर ज़हीराबाद में जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 सितंबर बरोज़ इतवार 21 रबी अव्वल को सुबह ठीक 10 बजे ईदगाह से निकाला जाएगा। जुलूस मिलादुन्नबी की सदारत सैयद शाह मोहिउद्दीन कादरी उर्फ बाबा साहब सदर मिलाद कमेटी ज़हीराबाद करेंगे। अलहाज हाफिज सैयद शाह अफसर पाशा कादरी साहब जुलूस मोहम्मदी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मिलाद कमेटी के जिम्मेदारान ने ईद मिलादुन्नबी के जुलूस की तैयारियों का आगाज कर दिया है। कमेटी के जिम्मेदारान ने आज ज़हीराबाद सर्कल इंस्पेक्टर शिवालिंगम से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की और जल्द से जुलूस की बाकायदा इजाज़त हासिल की और इस मौके पर पुलिस से अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की। सदर मिलाद कमेटी बाबा साहब ने कहा कि जुलूस में बाइक्स और DJ को सख्त ममनुआ करार दिया गया है। शरंगेज नारे लगाने पर भी सख्त पाबंदी आयद की गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आमतुल मुस्लिमीन को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक। ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी है और इसी के ज़िमन में 14 सितंबर 2025 और इतवार का दिन बरोज़ जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जाएगा, जो ईदगाह से दरगाह से 10 बजे निकाला जाएगा। और इस जुलूस में बाइक का लाना ममनू है और तमाम गैर शरई हरकत करना ममनू है। और मैं तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि इस जुलूस मोहम्मदी में शिरकत फरमाकर कमेटी का और पुलिस का ताउन करें और हमारे माहौल को बिगड़ने से बचाएं। और तमाम से ख्वाहिश करता हूं कि पुरअमन तरीक़े से इस जुलूस मोहम्मदी को निकालें और नात सलात व सलाम के नजराने पढ़ते हुए निकालें। और DJ भी ममनू है और बाइक भी ममनू है। जो हजरात बाइक लाएंगे वो उन्हीं के ज़िम्मे रहेगी और हम उसके ज़िम्मे में नहीं रहेंगे। अगर पुलिस वाले अगर चाबी निकालें तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। इंशाअल्लाह मैं तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि पुरज़ोर तरीक़े से पुरअमन तरीक़े से
हर तरीक़े से आका की मीलाद मनाने आप तमाम आशिक़ान रसूल को मदऊ करते हैं। हम अहले सुन्नतुल जमात ज़हराबाद की कमेटी की तरफ से, मीलाद कमेटी की तरफ से आप तमाम शिरकत फरमाएँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कामारेड्डी में सीनियर कांग्रेसी कायद व NRI हाल मुकीम कोएत परवेज चाउस के वालिद मोहतरम जनाब हबीब अहमद चाउस के इंतकाल पर रियासती वज़ीर सितक्का व रियासती मुशीर अक़लियती BC ST मोहम्मद अली शब्बीर ने परवेज चाउस ब्रदर्स की रिहाइशगाह असलमपुरा पहुंचकर परवेज चाउस व ब्रदर्स एजाज चाउस, अफरोज चाउस से मुलाकात करते हुए इनको पुरसा देते हुए इनके वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। इस मौके पर ज़िले सदर कांग्रेस कामारेड्डी कैलाश श्रीनिवास, मोहम्मद अली इलियास फरजद मोहम्मद अली शब्बीर, रुकने बल्दिया मोहम्मद अमजद, MA माजिद रिपोर्टर मुफ्ती इलियास खासमी, सदर मदरसा काशिफुल उलूम मौजूद थे। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान जारी। हैदराबाद में कीमतें आसमान छूने लगी। 22 कैरेट 1,02,000 रुपये जबकि 24 कैरेट 1,13,000 रुपये दर्ज। शहर और अजला में शदीद बारिश से मुश्किलात। मेदक में दोबारा सैलाबी सूरत हाल। वरंगल में सड़कें झील में तब्दील। उस्मान सागर व हिमायत सागर के खोले गए दरवाजे। मिलादुन्नबी जुलूस के मौके पर चार मीनार और तफरीही मुकामात रहेंगे बंद। महकमा आसार खदीमा का फैसला। मिलाद डोनर से कमिश्नर पुलिस CV आनंद का खिताब। KTR को बावकार ग्रीन लीडरशिप अवार्ड 2025। BRS वर्किंग सदर का बैनुल-अक़वामी एजाज के लिए इंतखाब। न्यूयॉर्क में 24 सितंबर को होगी तकरीब। याकुतपुरा में लड़की मेन होल में गिरने का वाकया, यह हाइड्रा की गलती थी, हम जिम्मेदार। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ का एतराफ। अवाम में सख्त बरहमी। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BPN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।